चलो, first one is Bohr's postulates. Bohr's postulates for what, beta? For single electron system. For your single electron system. Okay. So what is the first law, beta? I hope everyone remembered. First postulate of this one is every electron revolves around the circular orbit. ये हो गया circular orbit. ये इसका radius है, मान के चलो radius of your nth orbit, and at the center we are having the positive charge, that is nothing but z into your e. An electron in this one is right now revolving. So इसकी जो velocity रहेगी, this is the velocity of your nth orbit. This is the radius of your nth orbit part of relation, velocity of your nth orbit. So in this one, electrostatic force जो भी होगा k into z into e square divided by radius of your nth orbit. अगर मैं first orbit के बारे में लिखूं, r1 square will be equal to your m into velocity of your nth orbit divided by radius of nth orbit. ये भी nth orbit ही ले लेता हूँ. तो rn और a square यहाँ पर कट जाएगा, तो you will be getting the radius of your nth orbit. That is your first postulate of this one. ठीक है ना? So second postulate. So first postulate बोल रहा है कि every electron revolves around the nucleus, and what is the force responsible for that one to revolve? Obviously centripetal force. So k is 1 by 4 pi epsilon naught z into e square divided by rn square, that is equals to centripetal force का फॉर्मूला लिखा मैंने m into vn square divided by radius of your nth orbit. ठीक है ना? ज्यादा बकवास में नहीं कर रहा मैं इसके अंदर. Now Bohr's model of second postulate क्या देगा बेटा अपने को? Quantization देगा. So this will be giving you the quantization. किसका कंडीशन क्या है? एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू योर n टाइम्स ऑफ योर h डिवाइडेड बाय 2 पाई. n इज नथिंग बट ऑफ योर सबसेट ऑफ योर इंटीजर्स. यानी m कैसे लिख सकता हूं मैं? एंगुलर मोमेंटम इज m into velocity of nth orbit, radius of your nth orbit, that is equals to n into h divided by 2 into your pi. So this is your second postulate. Now if I am talking about your third postulate, बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट क्या था बेटा? किसी को याद है? तो अगर मैं इसका थर्ड पोस्टुलेट देख लूं, ये इसका एनर्जी लेवल है बेटा, और यहाँ पर एक एनर्जी लेवल. ओके. So whenever an electron is jumping from the higher orbit, ये जो इलेक्ट्रॉन है, so when electron is jumping from the higher orbit to the lower orbit, it will emit the radiation in the form of your wavelength lambda. तो ये हो गया इसका ऑर्बिट n1 और ये उसका हो गया ऑर्बिट n2. So during the emission of electron from higher orbit to lower orbit, whatever energy is being released, that is given by the formula hc divided by your lambda is equals to your energy of your n2 minus of your energy of your n1. देखो आना अलग बात है, टाइम पे रिप्रोड्यूसन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. गिची प्रॉब्लम्स और गिची के क्या बोलते फॉर्मूले मत लिखो. जितना ज्यादा नेक्टार का फॉर्मूला यूज होता है उसको मेन फॉर्मूले को याद रखो और उसको अच्छी तरह से परखने की कोशिश करो. दैट विल हेल्प यू आउट इन द एग्जामिनेशन. सो आई होप मैंने वेरी क्लियरली फर्स्ट 3 पोस्टुलेट्स आपके लिए लिख दिया है. So first postulate says that every electron revolves around the nucleus in a circular orbit. Second postulate says the quantization, that is L is equal to n into h by 2 pi. L is your angular momentum and n is some integer. Angular momentum अगर circular path में move हो रहा है तो m into velocity of nth orbit, radius of nth orbit is equal to n into h divided by 2 pi. Whenever an electron is jumping from higher orbit to your lower orbit part of relation, I can write the energy will be equal to your energy of your second orbit minus energy of your first orbit part of relation. So this was about your first thing आप लोग को याद रखना है first part में. तो इसके अंदर second part जो मैं आप लोग को discuss करूँगा, that is about your energy levels. Energy level of your hydrogen-like atom. हाइड्रोजन लाइक एटम यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा. ठीक है. तो मैं इसके एनर्जी लेवल्स यहाँ पर लिख रहा हूँ. देखो बेसिकली दिस आर योर एनर्जी लेवल्स.
ठीक है बेटा. So this is your energy orbit levels. N is equals to 1, N is equals to 2, N is equals to 3, N is equals to 4 और N is equals to your 5. So energy of your nth orbit का फॉर्मूला क्या है बेटा? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग. एनर्जी ऑफ योर nth ऑर्बिट, बचपन मतलब आपका 11th एंड 12th से, जब से आप नीट की प्रिपरेशन करना शुरू करें. एनर्जी ऑफ योर nth ऑर्बिट इज माइनस ऑफ योर 13.6 इनटू योर, ये हो गया z स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर en स्क्वायर. इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द एनर्जी. सो लर्न देम फॉर स्पीड कैलकुलेशन बेटा. स्पीड कैलकुलेशन करने के लिए ये डायग्राम आप लोग के दिमाग में रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, isn't it? तो यहाँ पर मैं एनर्जी लेवल का डायग्राम ड्रॉ किया मैंने. तो लोएस्ट लेवल एनर्जी में n इज इक्वल टू 1 है, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? माइनस 13.6 इनटू योर z स्क्वायर. यूनिट क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जरा मोटा हो गया, so this one will be equal to minus of your 13.6 into your z square, and then everything will be in the electron volt beta. फिर मैं जितना लिख रहा, this one is 3.4 into your z square. This will be minus of your 1.1 into your z square. This one is minus of 0.85 into your z square. This one is minus of 0.54 into your z square. Everything is in electron volt beta. ये कहाँ तक जाएगा बेटा? up to infinity तक जाएगा. n is equals to infinity के पास एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? जीरो. एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो. So this is your energy level diagram for your hydrogen like atom particulation. और इसमें जो फॉर्मूला अपने को याद रखना है, that formula is nothing but of your energy of your nth orbit is minus of your 13.6 into z square divided by your n square particulation. चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके अंदर एक्साइटेशन एनर्जी के बारे में. एक्साइटेशन ऑफ योर एटम. छोटा टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है बेटा. तो एक्साइटेशन ऑफ एन एटम में क्या होगा बेसिकली? देखो, फॉर एन इलेक्ट्रॉन to observe the energy and excite from the lower orbit to another orbit, higher orbit, the energy observed must be exactly equal to your difference of the energy required to emit electron from higher orbit to lower orbit. मान के चलो, मैं इसको यहाँ पर लिखते रहा हूँ. For electron to observe energy, to observe the energy and excite, और इसको excite भी करना है. From which orbit बेटा? From n1 to your en2. तो ये जो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, the energy observed must be exactly equal to, must be your exactly equal to energy of your nth orbit, that is second one, minus of your first one. ठीक है ना? अगर मान के चलो मैं जा रहा हूँ फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं बेसिकली. मान के चलो मेरे पास एक ऑर्बिट है और यहाँ पर एक ऑर्बिट है. आई एम गोइंग फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 1 से लेके n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, कुछ भी जा रहा हूँ. तो यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पर एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा. और फिफ्थ थर्ड के लिए एनर्जी लेवल क्या था बेटा? देखो थर्ड के लिए कितना एनर्जी लेवल था? माइनस 1.5. तो ये हो गया माइनस ऑफ 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हाइड्रोजन लाइक एटम बोला है तो z की वैल्यू मैंने ले लिया 1. सो देयरफॉर इसका आंसर क्या आना है? E3 माइनस ऑफ योर E1 मस्ट बी इक्वल टू, E3 की वैल्यू माइनस ऑफ 1.51 माइनस ये 13, तो ये कितना आ जाएगा? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतनी एनर्जी. तो मैं क्या बोल सक रहा हूँ? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ योर एनर्जी मस्ट बी ऑब्जर्व्ड. must be observed. अगर इतनी एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तो इट कैन गो फ्रॉम योर n1 टू योर n2 और इट में गो फ्रॉम योर n1 टू n3. इस एग्जांपल में n इज इक्वल्स टू 1 से लेके n इज इक्वल्स टू 3 तक जाने के लिए कितनी एनर्जी ऑब्जर्व करना है? मतलब 12.03. So 12.3 energy must be observed by this one to move from your n is equals to 1 to n is equals to 3. Is it clear for everyone? Sure, very good. Fourth one. Wavelength of your emitted radiation. Wavelength of your emitted radiation. 4 मार्क आपके पॉकेट में हो गए बेटा कल लास्ट टॉपिक में, और ये 4 मार्क 8 मार्क आपके खाते में पड़ जाना चाहिए किसी हाल में भी. दिस इज योर हायर एनर्जी ऑर्बिट, सॉरी
शेप में ले लें। ओके, ये हो गया मेरे पास n इज इक्वल्स टू 1 और ये हो गया मेरे पास n इज इक्वल्स टू 2। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो भी यहाँ पर है, दिस इज माइनस, दिस इज लिबरेटिंग द इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ से यहाँ तक इसको आने के लिए जो एनर्जी होगा इसके अंदर जब ये आएगा यहाँ से, सो दिस विल बी एमिटिंग द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, हाउ मच फॉर मी, लैम्डा। ठीक है, तो अब इसके लिए कंडीशन क्या लिखूंगा मैं बेटा, hc डिवाइडेड बाय योर लैम्डा इज इक्वल्स टू योर एनर्जी ऑफ योर सेकेंड ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ योर फर्स्ट ऑर्बिट। यानी फॉर्मूला क्या है बेटा, 1 बाय योर लैम्डा इज इक्वल्स टू योर r into your z square into 1 by your n1 square minus of your 1 by your n2 square। ओके, और r की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन के लिए, अप्रोक्सीमेटली 10 to the power of 7 मीटर इनवर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। इतना तो नॉलेज आप लोग के पास होगा ही होगा। सो दिस वन इज योर रिडबर्ग्स कांस्टेंट। सो वेवलेंथ का फॉर्मूला विच इज योर ब्रह्मास्त्र फॉर डूइंग द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द वेवलेंथ, 1 by lambda is equals to r into z square divided into 1 by n1 square minus 1 by n2 square। n1 is a lower energy orbit, n2 is your higher energy orbit, z is atomic number and r is your Rydberg's constant particle relation। तो इसके अंदर एक छोटा सा नोट डाल के इसको लिख लो बेटा, वेवलेंथ विल बी इक्वल टू 12430 डिवाइडेड बाय, अगर एनर्जी मान के चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो वेवलेंथ आएगा एंगस्ट्रॉम में। R is can be taken as 1243 divided by delta E, energy should be in electron volt and ये हो गया नैनोमीटर। तो इसको 30 के जगह हम लोग 12400 भी ले सकते हैं और यहाँ पर 1240 भी ले सकते हैं, प्रोवाइडेड इन द वेवलेंथ है नैनोमीटर, प्रोवाइडेड एनर्जी इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वेवलेंथ इज इन योर एंगस्ट्रॉम पार्ट। इतना अपनों को तो याद रखना है। नेक्स्ट वन, डेल्टा E विल बी इक्वल टू योर 12400 ले रहा हूँ बेटा 30 के लिए, अप्रोक्सीमेटली वेवलेंथ शुड बी इन योर एंगस्ट्रॉम, यूनिट इसकी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? चलो, so this one was my fourth point। और इसमें जो फिफ्थ पॉइंट अपने को याद रखना है, how to calculate your number of your spectral lines। okay, so number of your spectral lines को calculate करने के लिए क्या है, what do you mean by number of spectral lines बेटा, possible number of photon energies emitted due to the de-excitation, isn't it? So I can say that this one is nothing but, मैं one word में लिख रहा हूँ इसको, possible number of photons, photon or photon energy seconds, photon energies emitted due to de-excitation, of electron from n is equals to n2 to n is equals to your n1। okay, so n2 से लेके n1 के स्टेज के लिए, so that will be equal to how much बेटा, याद है किसी को? so that is your nc2 और इन लोग इसको लिखते हैं n into your n minus 1 divided by, ठीक है? चलो, बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बेटा, डायरेक्टली इस से भी लिख सकते हैं। so the possible number of photon energies emitted due to the de-excitation of electron from your n2 to your n1 will be equal to your n into n minus 1 divided by 2। बस इतना याद रख लो, ये काफी है। the next one is your sixth point, hydrogen spectrum series। यानी इतना डाटा तो आप लोग के पास इतना परफेक्ट होना है कि आपको रात के 1 बजे भी अगर उठा के कोई पूछे ना तो ये टकाटक, जैसा आप सेकंड टेबल बोलते हैं ना, उस तरह से रहना। इतना बेसिक नॉलेज तो कंपलसरी होना ही होना इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने के लिए। यानी एक जो अच्छा बच्चा है ना, ये बेसिक डाटा अपने दिमाग में लेके चलता है बेसिकली, इसलिए आप लोग को बोल रहा हूँ, अगर एवरेज भी, अगर अभी भी स्टार्ट भी नहीं किए, इतने डाटा से भी आप अच्छे खासे प्रॉब्लम्स इसके निकाल सकते हो बेसिकली। ठीक है,
ओके, यहाँ पर ले रहा हूँ मैं ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और यहाँ पर और एक ले लेता हूँ और ये हो जाएगा यहाँ पर 8। वैसे आप ऊपर जाते रहोगे n के लिए बेसिकली। अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन बात कर रहे हैं बेसिकली बेटा, इसमें मैं इसे लिख लेता हूँ पेंसिल से, या फर्स्ट वाला लिख लेता हूँ। An electron is jumping from second orbit to first orbit like this. Okay, सेकेंड ऑर्बिट से लेके फर्स्ट ऑर्बिट, वैसी तरह से पूरा वहां से आते आते ही रहेगा। उसके बाद फ्रॉम योर थर्ड ऑर्बिट टू योर फर्स्ट ऑर्बिट, उसके बाद अगेन फ्रॉम योर फोर्थ ऑर्बिट टू योर, देन अगेन फ्रॉम योर फिफ्थ ऑर्बिट टू योर ग्राउंड स्टेट, अगेन फ्रॉम योर सिक्स्थ ऑर्बिट टू योर ग्राउंड स्टेट, again from your seventh orbit to your ground state, then again from your 8 to like this। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? लाइमन सीरीज। अपन क्या बोलते हैं इसको? लाइमन सीरीज। और इसका वेवलेंथ रेंज कितना होता है बेटा? 91 नैनोमीटर से लेके 122 नैनोमीटर का रेंज होता है। ठीक है, यानी अगर आप इंफिनिटी से लेके 1 तक आ रहे होते ये हो जाएगा, अगर आप सेकंड से लेके फर्स्ट तक जा रहे हो तो ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है अपने पास बामर सीरीज। सो बामर सीरीज क्या होता है बेटा? थर्ड ऑर्बिट से जंप होके फर्स्ट ऑर्बिट को आएगा, देन अगेन फोर्थ ऑर्बिट से होके सेकंड ऑर्बिट को आएगा, देन फिफ्थ से ऐसा, देन सिक्स्थ से ऐसा, देन सेवेंथ से ऐसा, देन एथ से ऐसा। ठीक है, तो ये कौन सा सीरीज हो गया बेटा? बामा सीरीज। ये हो गया मेरा बामा सीरीज, और इसका वेवलेंथ रेंज है 365 नैनोमीटर से लेके 656 नैनोमीटर तक। तो ये जो हो जाएगा, दिस विल बी इन द विजिबल रीजन, दिस विल बी इन द विजिबल रीजन पार्टिकुलेशन। क्लियर है? देन उसके बाद आता है अपने पास, देखो मैं लिख ले रहा हूं इस तरह से, क्या अब कहां से बढ़ेगा बेटा? फोर्थ ऑर्बिट से लेके थर्ड ऑर्बिट तक ऐसा, then upper orbit 6, ठीक है ना। ये कौन सा हो जाएगा बेटा? पैशन सीरीज। ठीक है, सो पैशन सीरीज का वेवलेंथ रेंज क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 820 नैनोमीटर से लेके 1875 नैनोमीटर। मैं ये एनसीईआरटी का ही डाटा लिख रहा हूँ बेटा, बाहर का डाटा नहीं लिख रहा, सो बी लिटिल बिट केयरफुल रिलेटेड टू दैट वन। ठीक है, ये तो हो गया, उसके बाद ये ले लेते हैं। पैशन के बाद कौन सा सीरीज आता है बेटा? ब्रैकेट सीरीज। और ब्रैकेट सीरीज कहां से स्टार्ट होता है बेटा? राइट नाउ फॉर मी, यू टेल मी। फिफ्थ से लेके फोर्थ ऑर्बिट, यहां से लेके यहाँ, सॉरी ऐसा। ठीक है ना, नेक्स्ट वन इज अबाउट योर ब्रैकेट सीरीज। ओके, इसका डाटा देख लो, उसके बाद आ जाएगा अपने पास फन सीरीज। सो फन सीरीज कहां से आता है बेटा? इसके अंदर अभी सिक्स्थ से लेके फिफ्थ ऑर्बिट तक, तो यहां से डाल दूं।
ठीक है. So this one is your fun series. ओके, तो इसमें ये विजिबल रीजन का रीजन अच्छी तरह से याद रखना है और पैकेट सीरीज, बामा सीरीज और लाइमन सीरीज के वेवलेंथ याद रखना. इसके अंदर वेवलेंथ रेंज के क्वेश्चन पूछता रहता है जनरली. तो इतना बेसिक नॉलेज अपने को रहना चाहिए फॉर डूइंग द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर एटम्स पार्टिकुलेशन. अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक छोटा सा हेडिंग लिख रहा हूँ. एक्स्ट्रा मतलब आउट ऑफ नहीं है बेटा, विद इन द सिलेबस ही है, लेकिन ये डाटा जनरली बाय हार्ट करने का डाटा होता है जिसको हम लोग को याद रखना कंपलसरी है. फर्स्ट वन इज नोन एज ऑफ योर इम्पैक्ट पैरामीटर. फर्स्ट डेफिनेशन जो है ना, इम्पैक्ट पैरामीटर, जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं. डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहाँ पर. इम्पैक्ट पैरामीटर इज नथिंग बट बेटा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ योर न्यूक्लियस पार्ट. वो पूरा आप लोग को अभी ज्यादा दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं है. सो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लो. बी इज इक्वल्स टू, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू z इनटू ई स्क्वायर. यहाँ तक कॉमन है. बस अब यहाँ से आपको याद रखना है कॉट ऑफ योर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आना है हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर. बस इतना याद रखो. So impact parameter is being calculated like this. Clear है? So larger value of impact parameter means smaller will be the deviation particulation. ठीक है ना? अगर fraction of alpha particle पूछ रहा है basically, second point इसमें जब लिखना है अपने को, fraction of alpha particles, that is n, it is at an angle theta, okay, varies as नंबर ए. सो फ्रैक्शन को मैं n into d theta से लिख रहा हूँ, that is directly proportional to z square, and this fraction it is at an angle of deviation is inversely proportional to 1 by sin to the power of 4 into theta by 2. ठीक है. सो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच भी आपको याद रखना है. बस काफी कर लो. ठीक है सभी को, यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलो यहाँ पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा. अगर इम्पैक्ट पैरामीटर 0 हो गया तो एंगल ऑफ डेविएशन कितनी होगी? एंगल ऑफ डेविएशन कितनी होगी? कोई बता सकता है? अगर इम्पैक्ट पैरामीटर है ना ऊपर वाले में 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है और हाफ ऑफ योर m into v स्क्वायर भी कांस्टेंट है. तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि इम्पैक्ट पैरामीटर के अंदर b इज राइट नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ओनली, दैट इज नथिंग बट cot थीटा बाय 2. अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाल दूं तो b इज इक्वल्स टू k into cot ऑफ योर थीटा बाय 2 आ गया. अब बोल रहा क्या? इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है यानी b 0 है, b 0 कर दिया, दैट इज नथिंग बट k into योर cot ऑफ योर थीटा बाय 2. तो मैं से ये भी लिख सकता हूँ कि cot थीटा बाय 2 विल बी इक्वल टू 0. ठीक है ना? अगर ये 0 हो गया cot थीटा बाय 2 पार्टिकुलेशन, सो फॉर व्हाट एंगल इट इज बिकमिंग फॉर मी 0, यानी यहाँ पर अगर मैं cot थीटा बाई 2 मतलब कितना हो जाएगा बेटा? cot 90, यानी ये बन जाएगा मेरे को थीटा बाई 2 विल बी इक्वल टू योर 90 डिग्रीज, दैट इज नथिंग बट पाई बाई 2, यानी थीटा विल बिकम फॉर मी पाई और इट विल बिकम फॉर मी 180 डिग्रीज. सो द एंगल ऑफ डेविएशन इसका कितना बन जाएगा? 180 डिग्रीज बन जाएगा. बात क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो बेटा. इन Rutherford's alpha particle experiment with thin gold foil, 8,100
scattered alpha particles per unit area per minute were observed at an angle of 60 degrees. At an angle of your 60 degrees. Now the question is, find the number of scattered alpha particles per unit area per minute at an angle of 120 degrees. चलो जल्दी करके बताओ, कोई करके बता सकता है क्या? देखो ठीक है। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड क्या होगा फॉर्मूला? बताओ क्या क्या देखा है प्रॉब्लम में? थीटा 1 दे रखा है 60 डिग्रीज, थीटा 2 दे रखा है 120 डिग्रीज, n1 दे रखा है मेरे पास 8100 और पूछ रहा बस n2। डायरेक्ट फॉर्मूला है ना बेटा, नंबर ऑफ योर पार्टिकल स्कैटर्ड इज 1 बाई साइन टू द पावर ऑफ 4 इनटू थीटा बाई 2। तो n1 by n2 में लिख लो इसको। So this one is your n1 divided by your n2 will be equal to sin to the power of 4 into theta 2 divided by 2 divided by sin to the power of 4 into theta 1 divided by 2। तो n1 की वैल्यू है मेरे पास 8100 divided by your n2 is equals to, ये कितना बन जाएगा बेटा? sin to the power of 4 120 divided by 2 divided by sin to the power of 4 theta is how much for me 60 divided by 2। तो ये आ रहा मेरे पास sin to the power of 4 60 degrees divided by sin to the power of 4 30 degrees। तो n2 की वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 8100 इंटू, ये कितना बनेगा बेटा जल्दी से बताओ? sin to the power of 4 यानी sin 30 और sin of 60, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1/16 और ये बन जाएगा मेरे पास 9/16। ठीक है ना? तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आएगा दैट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ योर n। ठीक है ना? सो दैट विल बी द आंसर। इसका कैलकुलेशन आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? इसके बाद इसके अंदर और एक पार्ट है जो आप लोग को बाय हार्ट रखना है बेटा। फर्स्ट वन इज अबाउट योर nth ऑर्बिट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं राइट नाउ। रेवोल्यूशन ऑफ योर इलेक्ट्रॉन इन योर nth ऑर्बिट। इसमें देखो, अगर मैं एंगुलर स्पीड के बारे में बात करूं, एंगुलर स्पीड फॉर द nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर z स्क्वायर टू द डिवाइडेड बाय n क्यूब। Velocity of your nth orbit is directly proportional to z square divided by your n cube. Time period of your nth orbit, time period of your nth orbit is here. Time period of your nth orbit is proportional to n to the power of 3 divided by z square. Then angular momentum of your nth orbit is directly proportional to your n. Current in the nth orbit is directly proportional to z square divided by your n cube. Magnetic moment of your nth orbit is directly proportional to your n, and magnetic induction is directly proportional to z to the power of 3 divided by n to the power of your 5.
ठीक है, इसके अंदर एक दो तीन ग्राफ्स भी है बेटा, इसको हम लोग को याद रखना है बेसिकली। देखो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ योर nth ऑर्बिट वर्सेस योर एटॉमिक नंबर का अगर ग्राफ ड्रॉ करूं, सो दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम योर ओरिजिन, because velocity of your nth orbit is directly proportional to your z, velocity of your nth orbit, isn't ये frequency है बेटा, sorry it is not in this one, so ये जो हो जाएगा this one is your frequency of your nth orbit, ठीक है ना। velocity is directly proportional to z, फॉर्मूला क्या था बेटा, याद है किसी को? velocity of your nth orbit is directly proportional to z divided by your n, इससे पहले लिख दिया था मैंने। उसी तरह से velocity of your nth orbit, velocity of your nth orbit to your n inversely proportional है, so this will be your rectangular hyperbola, इस तरह से। क्लियर है? उसी तरह से और एक ग्राफ्स भी है बेटा, इसका थोड़ा याद रखना है। ये देखो, this is the radius of nth orbit, this is the radius of nth orbit, this is the radius of nth orbit, यहाँ पर है z, यहाँ पर है n और यहाँ पर है n स्क्वायर। ये ग्राफ को यही सीक्वेंस में याद रखो, it will be easy for you to remember. Radius of your nth orbit is inversely proportional to the atomic radius. Radius of nth orbit is directly proportional to root n. Radius of nth orbit is directly proportional to your n square. ठीक है ना। तो इसके लिए जो ग्राफ आएगा that will be your rectangular hyperbola like this. इसके लिए this will be like this और इसके लिए it will be a straight line like this, directly proportional n square के लिए। क्लियर है बेटा सभी को? Is it clear for everyone? क्लियर है? नेक्स्ट वन, डबल स्टार मार्क डाल के, total energy is always equals to minus of your kinetic energy and that is equals to half of your potential energy. ये भी एक बेसिक फॉर्मूला है जिसे हम लोग को कंपलसरी याद रखना। क्लियर है? और कैलकुलेशंस के लिए RCH की कांस्टेंट वैल्यू याद रखना है बेटा, दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इजी कैलकुलेशंस के लिए, इजी कैलकुलेशंस के लिए कंपलसरी याद रखना है, सो दैट इज अ गिवन कंडीशंस फॉर दैट वन वी नीड टू रिमेंबर। क्लियर? ठीक है, so इतना नॉलेज अगर अपने पास है then we can do 90% of your questions in this one, provided अगर आप लोग PYQs इसके कंपलसरी कर रहे हो। अगर PYQs के साथ अगर इसको खत्म कर लोगे that will be more easy to do the problems related to this one. क्लियर है बेटा? Is it clear for everyone? क्लियर है सभी को? सो लाइमन सीरीज कहां से स्टार्ट होता है बेटा? 2 से 1, उसके बाद 3 से स्टार्ट होगा, इट मे बी कमिंग फ्रॉम योर 2 to 1 और गिवन कंडीशन भी लिख सकता हूं मैं बेसिकली। सो गो ऑन फॉर दिस वन गिवन कंडीशन, ओके। एंड हम्फ्री सीरीज है, फन सीरीज है, वो पूरा अपने को भी जरूरत नहीं है बेटा, दैट इज ऑलवेज टू बी रिटन राइट नाउ। सो बस इतना पता याद रख लो, बस काफी है बेसिकली। अगर यहाँ पर देखो बेटा, n2 इज इक्वल्स टू योर n1 प्लस 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज योर हाईएस्ट वेवलेंथ, ठीक है। अगर n2 इंफिनिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दिस विल बी द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। इस पे भी क्वेश्चंस पूछते रहता है बेटा बेसिकली, ठीक है। इतना पूरा अपने को याद रखना है फॉर द एनर्जी। क्लियर है सभी को यहाँ तक? इसमें प्रॉब्लम्स अच्छा प्रैक्टिस करना है बेटा, क्योंकि इसमें छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं जो आप लोग का कंसंट्रेशन बिगाड़ देंगे। सो बी लिटिल बिट केयरफुल रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम्स इन दिस चैप्टर, और PYQs ही करके जाइए 1 से 2 बार, दैट विल बी मोर देन इनफ। ज्यादा बड़े क्वेश्चंस मत करिए, इट विल बी ऑफ नो यूज फॉर यू। सो जितना हो सका उतना बेसिक क्वेश्चंस करके जाने की कोशिश कर लीजिए इसका। क्लियर है? तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आप लोग को अपने दिमाग में लगा के रखना है व्हाइल डूइंग द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दिस वन। और एक छोटा पॉइंट है इसके अंदर, दैट वन इज अबाउट योर मोजलेस लॉ।
केमिस्ट्री में भी आता है, तो 90% बच्चों को तो ज्यादातर याद ही होना चाहिए। सो मोस्टली ऑब्जर्वेशन क्या था बेटा राइट नाउ, कोई बता सकता है? रूट ऑफ योर न्यू इज इक्वल्स टू योर ए इनटू योर जेड माइनस ऑफ योर बी। Okay, A and B are constants for one type of X-rays beta, and for all elements it is independent of your Z, isn't it? So ये अपने को याद रखना है, root of your mu is equals to A into your this one part relation. Clear है? B is known as what beta? Screening effect, or we can say it is a screening constant, और कभी-कभी इसको हल्ड हम लोग shielding effect भी बोलते हैं बेटा। And Z minus B क्या होता है बेटा? Z minus B is your effective nuclear charge. Effective charge भी बोल सकते हैं इसे, isn't it? तो देखो एक्चुअल फॉर्म जो लिखते हैं बेटा, रूट ऑफ योर म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर, ये हो जाएगा C इंटू योर R इंटू 1 बाई योर n1 स्क्वायर माइनस ऑफ योर 1 बाई योर n2 स्क्वायर। ये जरूरत नहीं है बेटा, छोड़ दो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना लेवल तो नीट के लिए नहीं पूछा जाएगा, तो प्लीज ट्राई टू लीव इट ऑफ। इतना बस याद रख लो, काफी है, ठीक है। मोस्टली इस्लाम में इतना हम लोग याद रख लें बस, ठीक है ना? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? एक छोटा सा डायग्राम भी ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर देख लीजिए एक्सरेज के लिए। डेफिनेट है तो बहुत ज्यादा रहता बेटा, तो उतना ज्यादा अभी तो टाइम नहीं है अपने पास, तो हम डायरेक्टली राइटिंग द आंसर फॉर दिस वन। टू से 1 आ रहे हैं हम लोग, ओके। देन इफ आई एम कमिंग फ्रॉम योर 3 to your 1, ओके तो पहले इसको नेमिंग दे देता हूँ मैं। दिस इज योर के शेल, दिस इज एल, दिस इज एम, दिस इज एन एंड दिस इज ओ, यानी दिस विल बी इक्वल टू n is equals to 1, n is equals to 2, n is equals to 3, n is equals to 4 और n is equals to 5, ओके। अगर ये n is equals to 2 से n is equals to अल्फा पे आ रहा है, इट विल रेडिएट सर्टेन एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं k अल्फा। अगर यहाँ पर 3 से लेके 2 तक आ रहा है, दिस इज नोन एज ऑफ योर k बीटा। क्लियर है? Is it clear for everyone? Okay. और ऊपर से भी आ रहा है, then it is also called as of your k beta। अब इसके लिए और एक दे रहा हूँ, देखो बेसिकली अगर मैं इसको यहाँ पर इससे लिख लूँ, या so if I'm coming from your 3 to 1 like this, then 4 to 1 like this, okay। तो इसको हम लोग बोलते हैं L alpha and L beta part of relation। Clear है basically? So that will be called as of your L alpha, this will be equal to your L beta, ठीक है। उसी तरह से इसका मैं पेन चेंज कर देता हूँ, हाँ। If I am coming from your N to this orbit like this, या ऊपर से इस तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं EM alpha and this will be your EM beta। उसी तरह से गामा वगैरह कहते रहेगा बेसिकली, so be little bit careful related to that one। Is it clear for everyone? Isn't it? So continuous X-ray spectrum और as well as of your characteristic X-ray spectrum, थोड़ा NCERT निकाल के आप लोग करने की कोशिश कर लीजिए, ठीक है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो ये करना आप लोग को कंपल्सरी याद रहना चाहिए। तो मैं एक ग्राफ दे रहा हूँ आप लोग इस तरह से, एंड एक्सरेज कभी भी मिनिमम से स्टार्ट होता है बता, ऐसा जाएगा, एक शार्प पीक आएगा, देन अगेन इट विल राइट, देन अगेन लाइक दिस, अगेन वन शार्प पीक लाइक दिस, अगेन डाउन, अगेन फाइनली इट विल गो लाइक दिस, okay। So this one is your 1, this one is your 2, this one is your intensity versus your wavelength का ग्राफ है, लैम्डा, okay। So ये हो गया मेरे पास 1 और ये हो गया मेरे पास 2, ठीक है। सॉरी ये हो गया 1,
क्वेश्चन है फाइंड विच इज के अल्फा एंड के बीटा, ये मेरा क्वेश्चन है। इसका एक ग्राफ दिया रखा है, तो इसमें के अल्फा कौन सा है, के बीटा कौन सा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, मिनिमम वेवलेंथ। सो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है इन द एक्सरे बेटा, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाई योर लैम्डा, तो वेवलेंथ विल बी इक्वल टू योर एच सी बाई योर डेल्टा ई, एनर्जी डिफरेंस। So energy difference of k alpha is always lesser than of your k beta beta. Since energy difference of k alpha is less than k beta, होता है ना, क्योंकि एनर्जी डायग्राम आप लोग मालूम है, नीचे 13.6 है, उसके ऊपर से कमेंट होते चले जाएगा। सो आई कैन से राइट नाउ डेल्टा ई ऑफ योर के अल्फा is lesser than delta E of your K beta. So obviously wavelength of your K beta will be lesser than of your wavelength of your K alpha. So 1 represents me what beta? K beta, and 2 represents me what? K alpha. Clear है? इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो, it will be helpful for you. Clear है सभी को? ठीक है, चलो एक और एक क्वेश्चन भी कर ले रहा हूँ इसमें। Find Z1 and Z2 and which one is greater। ये रेगुलर क्लास में हम लोग रेगुलरली पढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाता है, लेकिन अभी फिलहाल तो इतना नेक्टर आप लोग याद करके रख लो, बस काफी है। तो ये हो गया एक कंडीशन। तो यहाँ पर मैं ग्राफ फिर मिनिमम से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो वन ग्राफ गोस लाइक दिस बेटा, लार्जर, इसका पीक हो जाएगा यहाँ पर ऐसा, देन इट विल कम बैक, देन अगेन इट विल गो लाइक दिस। उसके बाद फिर एक और एक पीक आ रहा है बेसिकली, तो इट इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम, यहाँ से यहाँ तक गया, इसका पीक यहाँ तक गया, देन इट इज कमिंग राइट नाउ लाइक दिस, एंड अगेन इट इज गोइंग लाइक दिस। तो यहाँ पर हो गया मेरे पास, इस पे लैम्बडा है और इस पे हो गया इसका इंटेंसिटी, ठीक है, एनर्जी का सम को मास कर लो। तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ के अल्फा से, और इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं के बीटा से, सॉरी के अल्फा से। This one is also your K alpha, and this one is your Z1 and this one is your Z2, and this is for your wavelength of your lambda 1 and this one is for your wavelength of your lambda, ठीक है ना। Moseley's log relation लगाओ, root of mu is proportional to what beta, Z minus of your B. If Z is greater, mu will be greater and lambda will be lesser part. So यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, if Z is greater, then mu will be greater. अगर frequency greater है, then lambda will be less. बस basic knowledge है। So obviously I can say from this given figure, lambda 1 will be lesser than lambda 2. So obviously Z1 is greater than Z2. इतना basic knowledge question आप लोग को करना ही करना, ठीक है। Is it clear? Intensity is nothing but energy बेटा। ये वाले 2-3 ग्राफ के क्वेश्चंस आप लोग को याद रखने हैं, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो, it will be helpful for you in doing the numerical particle relation। क्लियर है सभी को यहाँ तक, ठीक है। चलो इतने सारे मैसेजेस करे यार, कमेंट्स देखने को उतना टाइम कहाँ मिलता है बेटा, तो मैं पढ़ाते देखूं अब ये देख लेते बैठा हूँ। ठीक है ना, चलो इतनी देर को भी आप लोग एडमिट हो गए यार अभी। चलो चलो कुछ मिस्टेक्स वगैरह जा रहा है तो प्लीज लेट मी नो, क्योंकि ओवरऑल भी लिख रहा हूँ मैं बेसिकली, तो इट मे बी टेकिंग टाइम, क्योंकि थोड़ा कंसंट्रेशन करके लिखते रहना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत मे बी हियर एंड देयर इट मे बी हैपनिंग, बट होगा नहीं 90%। अगर कुछ हो भी रहा है तो मैं फिर रिकरेक्शन कर दूंगा बेसिकली, क्योंकि रिकॉर्डिंग में जा रहा है बेसिकली, तो एज इट इज मैं आप लोग को अपलोड भी कर रहा हूँ, इट विल बी योर हेल्पफुल फॉर अस। तो अब हम लोग इस पे थोड़े जल्दी जल्दी प्रॉब्लम्स कर लेते हैं बेटा।
थोड़ी ही प्रॉब्लम करा रहा हूँ, ज्यादा नहीं। सुमैया नाजिन बोलो बेटा। सर लास्ट वाला ग्राफ फिर से एक्सप्लेन करिए ना। लास्ट वाला ग्राफ देखो, वेवलेंथ में कंसीडर करना है बेटा, ज्यादा कुछ नहीं है, मैं कर देता हूँ फिर एक बार। चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो बेटा जल्दी से, कोई कर सकता है क्या? देखो थोड़े ही क्वेश्चन से इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स के भी है बेटा, कल न्यूक्लियर फिजिक्स खत्म करूंगा तो उसके बाद इसके अंदर के बाकी के क्वेश्चन भी हम लोग खत्म कर लेंगे बेसिकली, ठीक है। तो आज जरा एटॉमिक फिजिक्स जितना मैंने पढ़ा है उसको आप लोग एक बार जल्दी जल्दी से करने की कोशिश कर लीजिए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा एक बार जल्दी से। एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज बीन स्कैटर्ड, it is been scattered through 180 degrees by a fixed uranium nucleus. The distance of closest approach of the is in the order of your how much? Closest distance of your order कितना है बेटा, किसी को याद है? किसी को याद है? डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 1, closest distance of orbit is 10 to the power of minus 14 meters बेटा। इसको डायरेक्टली याद रख लो, बेसिकल कंडीशन, isn't it? तो अगर इसको सेंटीमीटर्स में लिख रहा हूँ बेसिकली, सो दी आर नॉट विल बिकम फॉर मी 10 टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 12 सेंटीमीटर्स, ठीक है? इज इट क्लियर? मैंने इसका फॉर्मूला बताया था अभी आपको, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस विल बी इक्वल टू योर, सो इट विल बी योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर इलेक्ट्रॉन इनटू z इनटू e स्क्वायर 2 टाइम्स डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। उसकी वैल्यूज डाल दो, निकल जाएगा, डायरेक्टली याद रख लो, दैट इज मोर देन इनफ बेटा। चलो सेकंड वाला न्यूक्लियर फिजिक्स है, थर्ड वाला भी न्यूक्लियर फिजिक्स है, ये भी न्यूक्लियर फिजिक्स है, ये भी न्यूक्लियर फिजिक्स है, ये भी न्यूक्लियर फिजिक्स का है। देन विल ट्राई टू गो फॉर द नेक्स्ट वन, ये भी न्यूक्लियर फिजिक्स का है। देन या 12th वन का आंसर बताओ बेटा, कोई बता सकता है क्या? सो 11th वन भी बता सकते हो आप। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एनर्जी, नन ऑफ देम। क्या होगा आंसर? चैट बॉक्स में आप आंसर्स दे सकते हो बेसिकली बेटा, आई एम सीइंग राइट नाउ। क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ योर ऑर्बिट। सो 11th वन का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि एनर्जी ऑफ योर एस ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन योर, सॉरी लेसर देन ऑफ योर, सॉरी ये कहाँ गया? Energy of your s orbital is lesser than energy of the p orbital, that is lesser than of your d orbital, and that is lesser than of your f orbital. So electrons occupies the orbits in the increasing order of your energy particles. Okay, next one. Wave number is expressed in angstroms, hertz, meter inverse, radian seconds. जल्दी बोलना, जल्दी बोलना। 12th one C, very good। 12th one का आंसर है मेरे पास C, very good। The next one. Maximum number of the spectral lines obtained on account of the transition of electron present in the nth orbit to the various lower orbit is given by कितना बेटा? ये भी बोलना चाहिए सभी लोग। n into your n minus 1 divided by 2, yeah, D is the answer, very good। So 13th के लिए D है आंसर, very good। Then उसके बाद dimensions associated with the photon are, कोई बोल सकता है photon is nothing but what बेटा? What are the dimensions of your photon? डायमेंशंस ऑफ योर फोटोन, कोई बोल सकता है? एनर्जी है ना बेटा, सो फोटोन का डायमेंशन क्या हो जाएगा? दैट ऑफ योर एनर्जी। सो एनर्जी का डायमेंशन क्या है बेटा? ml स्क्वायर t पावर -2, वेरी गुड। सो फोटोन इज नथिंग बट इक्वल टू योर एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशन ml स्क्वायर t पावर -2, वेरी गुड। 15th वन तो अभी नहीं है, आप न्यूक्लियर फिजिक्स में कर लेंगे, ये भी फिजिक्स है। या द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल कैन बी इक्वल टू हाउ मच? 2n स्क्वायर, द बेसिक क्वेश्चन एग्जैक्टली। सो 17th वन के लिए आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर किसमें?
थर्ड ऑप्शन, दैट इज नथिंग बट बी, सॉरी। चलो, अल्फा पार्टिकल ये भी नेक्स्ट पार्टिकल है, एक्टिविटी ये भी नेक्स्ट है, ये भी नेक्स्ट है, ये भी सोर्स ऑफ इंटरस्टेलर एनर्जी, ये भी छोड़ा तो देन ये भी न्यूक्लियर फिजिक्स का ही है, देन एनर्जी ऑफ सन ये भी न्यूक्लियर फिजिक्स का ही है, देन ये भी न्यूक्लियर फिजिक्स का ही है, ठीक है, क्रिटेनियम। या चलो ये बताओ जल्दी से, हाइड्रोजन एटम्स आर excited from the ground state of the principal quantum number 4, then the number of the spectral lines observed will be equal to how much? बताओ जल्दी से, 40 का आंसर क्या हो जाएगा? 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 वेरी गुड, वेरी गुड। Number of spectral lines n is equals to your n into n minus 1 divided by 2. तो n कितना है मेरे पास? 4 into 4 minus 1 divided by 2, यानी this is 4 into 3 divided by 2. So 2 ones are 2 twos are 3 twos are 6. So 6 is the answer for this. ठीक है, 41. In hydrogen atom, the electron is given an orbit has a total energy of minus 1.5 electron volt. Then its potential energy is equals to how much? Then its potential energy is equals to how much? कोई बोलेगा? In hydrogen atom, the electron is given a orbit has a total energy of your 1.5 electron volt. Total energy of electron is equals to how much बेटा? Kinetic energy plus potential energy, है कि नहीं? चलो, कोई बोल सकता है आंसर? 41 minus 3.0 electron volt. Very good, very good. 41 is the correct answer beta. Total energy is given for me as minus of 1.5 electron volt. और अपने को मालूम है it is nothing but kinetic energy plus potential energy. इसकी वैल्यू दे रखी है minus 1.5 electron volt. और अपने को ये भी मालूम है kinetic energy is equals to minus of half of your potential energy. Isn't it? यानी मैं इसके अंदर kinetic energy कैसे ले सकता हूँ मैं? Half of your potential energy plus ये potential energy is equals to minus of 1.5 electron volt. तो ये कितना बनेगा बेटा? Half of your potential energy will be equal to minus of 1.5 electron volt. तो potential energy कितना बन जाएगा? Potential energy will be equal to minus of 1.5 into 2 electron volt. So it is 3 minus of your 3.0 electron volt. 15 to the 30, 1.52 is 3. क्लियर है? चलो 42 देखो बेटा, the ratio of energy of hydrogen atom in the first to the second A, R is nothing but here second A, so this should be equal to your second. Okay, second, the ratio of energy of hydrogen atom in its first to the second excited state is, second excited state is, बोलो जल्दी से, कोई बोलेगा? 42 का आंसर बोलो, 42 का आंसर बोलो। क्वेश्चन बता रहा हूँ फिर से एक बार, रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ योर हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट टू द सेकंड एक्साइटेड स्टेट विल बी इक्वल टू हाउ मच? हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में बात कर रहे हैं, तो z वैल्यू हो गई 1, एनर्जी ऑफ योर nth ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या है? माइनस ऑफ योर 13.6 into z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर n स्क्वायर, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब E2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब E3, तो ये हो गया मेरे पास 3/2 होल स्क्वायर, ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू योर 9/4. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट्स रिफर टू द सेकंड बेटा, refer to second, and third excited state second, first one will represent for me, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बेटा, so first excited state, first excited state मतलब second represent करेगा, second excited मतलब third represent करेगा, इतना तो basic knowledge होगा ही होगा। चलो 43, the series limit wavelength of Lyman series of a hydrogen atom is given by R is your Rydberg's constant part of relation. मैंने अभी आपको बताया था Lyman series in case of an hydrogen atom, Lyman series will always lie in which region beta? Ultraviolet region, and it is obtained by electron jumping from where beta? First orbit from the sequentity or infinity, कुछ भी हो सकता है। तो 43 का आंसर मैं क्या लिख सकता हूँ? So this one will be equal to your 1 by your lambda is equals to R, Z की वैल्यू है 1,
और ये वैल्यू कितनी है बेटा z, एंड दिस will be equal to your 1 by n1 square is nothing but 1 square, another one is nothing but of your infinity. So lambda will be equal to how much beta? 1 lambda will become for me how much? 1 by r. So it should be equal to your 1 by r. It should be equal to 1 by r. Okay, 44 का देखो. With increasing quantum number, the energy difference between the adjacent energy levels in the atom decreases, increases, remains same. First increases, then decreases. जल्दी से आंसर बोलो इसका. 44 कोई बोल सकता है क्या? 43 का ये है करेक्ट. 44 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? So with increase in the quantum number, the energy difference between the adjacent energy levels in the atom क्या हो जाएगा? Decrease होगा. It will be decreasing. Increase बोल रहे हैं. देखो क्वांटम नंबर जैसे with increasing the quantum number, the energy differences between the adjacent energy levels क्या हो जाएगा? Decrease होगा ना बेटा, क्योंकि नीचे -13 पॉइंट था, उसके ऊपर जैसे जैसे जा रहे थे फाइनली 0 बन जाएगा. So it will be your decreasing. 44 is nothing but of your ये तो उसका फिगर है, ये भी इसका है. अभी देखो 48. The figure shows the energy levels for an electron in a certain orbit, which transition shows they represent the emission of a photon with the most energy. ये आप लोग को ही बताना बेटा. So screen is blurred. Okay, चलो मैं थोड़ा बड़ा कर दूं. अब ठीक है. चलो इसका आंसर देखो बेटा 48. The figure shows the energy levels for an electron in a certain orbital, which transition shows the representation, the emission of a photon with the most energy. पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो. एक फिगर दे रखा है, मैं फिगर में आपको बताता हूं अभी. तो फिगर ये है इस तरह से, ये इसका फिगर है. n is equals to 1, n is equals to 2, n is equals to 3, n is equals to 4. So these are the energy levels. ये दे रखा है 2, 1, 4 and 3. 2, 1, 4 कहाँ दिया है? n is equals to 1 आ रहा है. maybe some data mistake है इसमें. चलो डायग्राम क्लियर नहीं है बेटा, वो बाद में कर लेते हैं. चलो और कुछ है क्या? देखो इसके अंदर ये भी नहीं है. इसका नंबरिंग देना बेटा. नंबरिंग नहीं दिया, बेसिकली नंबरिंग नहीं दिया तो करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फोटोन ट्रांजिशन कैसे निकालोगे आपको मैं खाली मेथड बता देता हूं. देखो 48 का जो है ना, हम लोग कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कर चुके हैं थे. एनिमेशन एनर्जी कैसे करोगे आप? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, isn't it? So this will be equal to minus of 13.6. ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा -13.6. उस पे जा रहे हो तो 1 स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करो, इसकी वैल्यू कितनी है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ऐसा डाल के अप्रोक्सीमेटली कर सकते हो एनर्जी लेवल के हिसाब से. तो अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ 1, ये डायग्राम नहीं दिया, वो मैं आपको क्रॉस चेक करके एक बार बता देता हूँ. ठीक है ना. ये वाले थोड़े क्वेश्चंस कर लो. आज PYQs इस पे खत्म कर लो. कल इस पे हम लोग एक असाइनमेंट डिस्कस करेंगे. 50 या 100 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट तैयार करके मैं दूंगा. तो आज थोड़ा बहुत आप लोग इसके नोट्स खत्म कर लेके कर लीजिए. ठीक है बेटा. चलो ओके चलिए.